Okay, so as we have discussed in the last section, we have actually worked on the functions in Python. So why to use function? What is the importance of functions? We have discussed in the last session. Also, we have created some functions and we have called the functions using some calling code. And actually, there was some main code and there was some functions, and we have called the functions by making some function call. Also, we have discussed some different terminologies that are used in the function, like some arbitrary arguments, arbitrary keyword arguments, simple keyword arguments, function arguments, function parameters, return value of function, how the function will return multiple values, and how to pass multiple values to a function. So before we begin with today's session, so I will quickly revise some thing regarding this function. So as far as the function is concerned, we have used num1 comma num2, this kind of syntax to define the function. And if it is the addition function, then we have used num1 plus num2, this kind of term. And here we can pass two different values, num1 and num2, let's say 10 and 20. So after running this code, once you will run this code, you will get the clear answer 30, like this. Now this was the function arguments or the parameter that we pass to the function, and this function is going to get this argument, and based on that it is going to perform some sort of addition, and according to that it will return some result to us. Okay, okay, we'll increase the font size, but let me know, is my screen visible? In the chat section there was a disconnection. Okay, fine. So we'll increase the font size also. Okay. So this was the thing that we have done yesterday. We have actually added two different numbers together using the addition function, and this was num1 plus num2. Now, secondly, we have also said that we can use the keyword arguments. Instead of doing this, you can actually use num1 equals to this 10, and in this case, num2 equals to this 20. In this particular case, it will be totally fine, and even if the you place these numbers in different order, then it will be totally okay. So if you run in this particular case, definitely will get this answer as 30. So in that case, the order doesn't matters, बिकॉज एक प्रॉब्लम हमें आई थी कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे जो पैरामीटर्स हम पास करें और एक्चुअली यहाँ पे डिफाइन किए, तो हो सकता है कि जो आपने डेटा पास किया है वो एक डेटा दूसरे वेरिएबल के अंदर कॉपी हो जाएगा, बिकॉज दीज आर पोजिशनल आर्गुमेंट. सो इफ दिस इज देयर, दिस विल बी कॉपीड इन नम वन, दिस इज देयर, दिस विल बी कॉपीड इन नम टू. लेकिन अगर आपने ऐसे कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं किए हैं तो दैट कुड बी प्रॉब्लम. लेकिन अगर कीवर्ड स्पेसिफाइड है तो आप इसका ऑर्डर कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं. सेकेंडली, अगर मेरे पास यहाँ पे इसी तरह से दो नंबर्स है and I want to use here only one variable, so in that case I can use
arbitrary argument, और in that case आपको यहाँ पे स्टार देना पड़ेगा, स्टार num। एंड इन दैट केस ये जो दो अपने वैल्यूज यहाँ पे पास करी है, दैट विल बी कॉपीड इनटू नम इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल। सो यहाँ पे दिस विल बिकम 10 कॉमा 20 लाइक दिस। एंड इफ यू वांट टू एक्सेस दिस वन, देन यहाँ पे आपको नम ऑफ जीरो, जिस तरह से हम ट्रिपल को इंडेक्सिंग करते एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे वर्कआउट कर पाओगे। अगर मैं चाहता हूँ कि इफ आई स्पेसिफाई कीवर्ड आर्गुमेंट्स, लेट्स से num1 इक्वल्स टू दिस 10 and num2 equals to this 20, and still I want to use here single argument or variable, in that case I can use arbitrary keyword arguments, and in that case this num will become a dictionary, and here it will be num1 colon, and again this will be num2 colon 20. So in this way it will become a dictionary. So in that case, if you want to access these terms, so instead of 0 and 1, because as you know for dictionary there is no indexing using zeros and ones, तो indexing जो होती है डिक्शनरी के लिए वो होगी इसके की से, और की है यहाँ पे num1 and num2। यहाँ पे पहला की है num1 and the second key is num2। इस तरह से इसको इंडेक्सिंग की जाएंगी, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल वर्क फाइन। सो अगेन वी आर गेटिंग 30 एज अ रिजल्ट। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने देखे हैं, और इन सब को यूज करके वी हैव मेड सम फंक्शंस and function calls. Also we have discussed return type, and also we have discussed how to pass multiple values to function, and also how to get multiple values in return using some tuple, or also you can use list to return multiple arguments or multiple parameters or multiple returns from our function. Now, in today's session, we are going to discuss about modules and packages. So, what is module and what is package? So, as far as function is concerned, function एक छोटा सा कोड है जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। हो सकता है दो तीन टास्क भी परफॉर्म करे, लेकिन एक डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करेगा। या फिर जो बड़ा कोड है उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, और उसमें का एक टुकड़ा फंक्शन हो सकता है। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू डिफाइन द फंक्शन, और उसको कॉल कैसे करना है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूल। नाउ मॉड्यूल क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो आप मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस डाल सकते हो। सो मॉड्यूल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। सो जितने भी फंक्शंस हम बनाएंगे उन सब का कलेक्शन इज नथिंग बट अ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो मॉड्यूल कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन अ मॉड्यूल? सो इन ऑर्डर टू डिफाइन द मॉड्यूल, सिंपली आपको यहाँ पे जाना होगा इन द लेफ्ट कॉर्नर और क्रिएट अ न्यू फाइल। सो यहाँ पे आप नाम दे दो इसको माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। तो यू कैन डू एनी नेम, बट कीप इन माइंड आप जो भी पाइथन का स्क्रिप्ट बनाओगे दैट विल बी ए योर मॉड्यूल। तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे दैट विल बी ए मॉड्यूल। तो आप उसको मॉड्यूल कंसिडर कर सकते हो। इवन मेन कैन बी ए मॉड्यूल। तो यहाँ पे इस तरह से कोई भी डिफरेंस नहीं है कि मॉड्यूल या फिर जो लाइब्रेरी का जो फाइल है वो डॉट एच करके होता है इन टर्म्स ऑफ सी लैंग्वेज, या फिर किसी और लैंग्वेज में कुछ और होगा। लेकिन पाइथन के अंदर इट विल बी बाय पी वाई ओनली। सो इट विल बी बाय एक्सटेंशन पी वाई ओनली। तो जो मेन कोड है दैट इज ऑल्सो हैविंग पी वाई एक्सटेंशन, एंड जो लाइब्रेरी है या फिर जिसे हम मॉड्यूल बोलेंगे जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन के कलेक्शन होगा, उसे भी हम डॉट पी वाई से ही सेव करेंगे। So in case of other programming languages, some different extensions are used. But in Python, every module or every Python script will end up with .py. Okay, there is no any other extension. Every module, every Python script will be having .py extension only. और किसी भी स्क्रिप्ट को यू कैन कॉल इन एनी डिफरेंट स्क्रिप्ट। तो आप मेन को माई मॉड्यूल में कॉल कर सकते हो, और माई मॉड्यूल को मेन के अंदर कॉल कर सकते हो। सो मॉड्यूल का सिंपल लैंग्वेज में, या फिर अगर आपने प्रीवियस लैंग्वेजेस पढ़ी है, तो मॉड्यूल का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है लाइब्रेरी। जैसे आप सी लैंग्वेज के अंदर हैश इंक्लूड stdio डॉट एच करते हो, या फिर conio डॉट एच करते हो, समटाइम्स मैथ डॉट एच करते हो, समटाइम्स स्ट्रिंग डॉट एच करते हो।
So all these are libraries: math.h, string.h, stdio.h. These are libraries. In Python such libraries are called as modules. तो उसे हम modules बोलेंगे. तो वो जो module है वो अ, उसके अंदर होंगे बहुत सारे functions. तो now we are having the module और इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ functions. So first of all let's write here addition function और इसके अंदर we'll pass this num1 num2 और यहाँ से this will return something. So it will return num1 plus num2. This will return this thing. So let me define one more function. इसके नीचे let's say this will be a subtraction. इसके अंदर भी यही सब कुछ होगा लेकिन it will return num1 minus num2. Let's define one more thing. और एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा अभी मल्टीप्लिकेशन एंड इसके अंदर भी यही सब कुछ होगा लेकिन it will return the multiplication. One more function called division. इसके अंदर it will return this divided by this thing. So now if I write a Python script having only function definitions, समटाइम्स कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, नॉर्मल कोड भी हो सकता है। इसके अंदर नॉर्मल कोड भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ फंक्शंस है, तो इसे हम बोलेंगे मॉड्यूल इन पाइथन। तो किसी भी पाइथन स्क्रिप्ट को जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस है, विल कॉल दैट एज अ मॉड्यूल इन पाइथन। एंड नाउ वी कैन यूज दिस कोड और यूज दिस मॉड्यूल इन एनी अदर डिफरेंट पाइथन फाइल। तो किसी भी और पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर we can use this my model.py वाला फाइल. So I can use this thing in main.py. तो अब main.py के अंदर ये सारी चीजें नहीं होगी. This will not be there in main.py. तो main.py के अंदर there will be only main code. So what we have essentially done, हमने एक ऐसी फाइल बनाई है जिसके अंदर functions लिखे हुए. There are so many functions inside that file and we are going to call that file from different file, so from main.py. So now I am not going to write addition, subtraction, multiplication, division wale functions in main.py. Everything is now saved in my model.py. Now our objective is to call these functions whatever we have written in my model.py in main.py. तो यहाँ पे we'll take this, let's say num1 इक्वल्स टू 10. आप यहाँ पे यूजर से भी ले सकते हो कि इंट इनपुट एंटर अ नंबर एंड ऑल. देन num2 इक्वल्स टू 20. दिस थिंग यू कैन डू. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली ऐड एक वेरिएबल लेके यहाँ पे यू कैन कॉल दिस एडिशन फंक्शन एंड इसके अंदर यू कैन कॉल num1 comma num2 and at the end you can expect that here will print the result. यहाँ पे आप print करो result equals to this add. Okay, so likewise you can try. Now simply by putting two files in a same folder. Now आप यहाँ पे अगर चेकआउट करोगे तो ये main.py and mymodule.py, these two files are in the same folder. तो क्या अगर हम ये दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर रखेंगे, क्या होगा अगर ये दोनों फाइल्स हम एक ही फोल्डर्स के अंदर रखेंगे, तो क्या यहाँ पे हम एडिशन फंक्शन को कॉल कर पाएंगे? ओके, दैट्स द क्वेश्चन नंबर वन. तो हम अगर इफ आई एम पुटिंग बोथ दी स्क्रिप्ट्स और बोथ दी पाइथन स्क्रिप्ट इन अ सेम फोल्डर, दैट मीन्स वो एक दूसरे को लोकल है, तो क्या इस तरह से मैं अगर लिखूंगा तो जो कि एडिशन फंक्शन इसके अंदर डिफाइंड है नहीं, वो है माई मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड, तो क्या मैं एडिशन फंक्शन को यहाँ से इस तरह से कॉल कर सकता हूँ? तो यहाँ पे अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, जस्ट लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू यूज मैटलैब प्रोग्रामिंग और एनी अदर प्रोग्रामिंग, तो इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इट वाज क्वाइट पॉसिबल विदाउट लोडिंग दैट. बट यहाँ पे अगर आप इसको रन करोगे तो विल गेट द एरर
एडिशन इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो दिस विल बी एरर, दैट मीन्स एडिशन इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये एडिशन जो है वो माई मॉड्यूल के अंदर से इसको मिल नहीं रहा है, इसको ले नहीं रहा है वो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको यूज करना होगा import। सो import my module। ओके, तो आपने जो मॉड्यूल डिफाइन किया है, जो पाइथन स्क्रिप्ट डिफाइन किया है, जिसके अंदर से आप जो कुछ भी यूज करना चाहते हो, तो यू नीड टू import my module, जो कि इस my module को अभी यहाँ पे import किया जाएगा। नाउ my module will be successfully imported in our code। Now hereafter we will be able to use the functions from my module। नाउ अगर मैं इस तरह से यहाँ पे अगर उसको रन करने की कोशिश करूंगा और इस तरह से ये सारे लिखूंगा चीजें, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर से लगेगा कि हो सकता है कि अभी ये वर्क करेगा। जैसे मैं सी लैंग्वेज के अंदर हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लिखता हूँ, तो उसके बाद इमिजिएटली मैं printf फंक्शन यूज कर पाता हूँ। तो यहाँ पे भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऊपर ऊपर से ऐसे लगेगा कि अभी ये काम करेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको रन करूंगा तो फिर भी मुझे एक एरर मिलेगी और सेम एरर मिलेगी, एग्जैक्ट सेम एरर, एडिशन इज नॉट डिफाइंड। अगेन आई एम गेटिंग द सेम एरर, एडिशन इज नॉट डिफाइंड। तो पाइथन के अंदर ये एडिशन फंक्शन किसके अंदर है? माई मॉड्यूल के अंदर है। तो आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, माई मॉड्यूल डॉट। ओके, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि माई मॉड्यूल डॉट एडिशन। तो अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो माई मॉड्यूल डॉट सब्सट्रैक्शन। तो उसका जो पेरेंट मॉड्यूल है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद डॉट, एंड देन आपको उसके बाद लिखना होगा एडिशन। अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है तो डिवीजन। सो इन दिस केस if I try to run this, I'll be getting the result. Now I'm getting result equal to 30। Similarly, अगर इसके जगह मैं addition की जगह division करना चाहूँ, तो my module dot division, and of course ये already हमारा है। ओके, ओके, ये सारा मैं हटा देता हूँ so that automatically ले जाएगा division, तो num1 comma num2। So in this particular case if you run, you will get the division result as 0.5। so everything is totally fine right now। तो इस तरह से हमें उस मॉड्यूल का नेम, डॉट ऑपरेटर, एंड देन जो भी फंक्शन आप उसके अंदर का यूज करना चाहते हो वो यूज करना है। फॉर एग्जांपल इन माय मॉड्यूल आई एम हैविंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। so what I'll do, I'll be taking this my module name dot and then the function name। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से लिखना नहीं चाहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए कि ये माई मॉड्यूल डॉट करके मैं हर टाइम लिखूँ। हर टाइम मैं माई मॉड्यूल लिखूंगा, फिर डॉट करके लिखूंगा, फिर डिवीजन करूंगा। इस तरह से मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैं सिंपली यहाँ पे इसी तरह से लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट ओनली डिवीजन। तो क्या ये पॉसिबल होगा पाइथन के अंदर? तो यस, डेफिनेटली पाइथन हैज दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको इसको भी ये अलाउ करेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो जिस तरह से आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसमें आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस क्या होंगे? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से वो स्टेटमेंट को थोड़ा-सा बदल देना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है कि माय मॉड्यूल के अंदर से डिवीजन को आप इंपोर्ट करो। तो अगर आप यहाँ से डिवीजन को डायरेक्टली इंपोर्ट करोगे, तो यहाँ से आपको माय मॉड्यूल डॉट डिवीजन लिखना नहीं पड़ेगा। यू कैन डायरेक्टली रन दिस कोड एंड इट इज़ स्टिल फाइन। सो रिजल्ट इक्वल टू 0.5। ओके, सो इन दिस केस आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं यहाँ पे एडिशन करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो if I try to run, it is saying कि addition is not defined because I haven't imported addition. I have imported only division. So that's the problem. तो इसके लिए और एक सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पे फिर से लिखो कि फ्रॉम ये my module import एडिशन। तो आप इस तरह से एडिशन को इंपोर्ट कर पाओगे और फिर वो काम करेगा। नाउ यहाँ पे आप बोलोगे अगर उसके अंदर 20 डिफरेंट फंक्शंस है, तो शुड आई राइट फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट एडिशन एंड सो मेनी 20 लाइन्स हियर? सो अगेन दैट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड टीडियस। तो अगेन यहाँ पे ये तो रिजल्ट यहाँ पे आया, लेकिन इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो अगर मेरे पास 20 फंक्शंस पड़े हुए हैं माय मॉड्यूल के अंदर, तो मुझे 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा ये सारा इंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए भी पाइथन आपको
फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप सिंपली इंपोर्ट, एडिशन, कॉमा, देन सब्सट्रैक्शन, ओके। तो जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहो, एडिशन, कॉमा, सब्सट्रैक्शन, देन कॉमा, मल्टीप्लिकेशन, कॉमा, डिवीजन। तो आपको जितने चाहिए उतने आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हो। तो एक ही लाइन में ये हो जाएगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड नाउ यू विल बी एबल टू यूज in one single line only. Again, the result is correct. Okay, we are getting the 30 as answer in that case. So in this way also you can write. Now आप यहाँ पे और भी बोल सकते हो कि ठीक है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर फिर भी 20-30 फंक्शंस है, तो यहाँ पे अगर मैं 20-30 फंक्शन के नेम्स लिखना चाहूँ, तो दैट विल बिकम अ लेंदी। तो उसके लिए भी क्या सॉल्यूशन है क्या? तो यस, उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप यहाँ से इंपोर्ट स्टार कर सकते हो। तो इफ यू डू लाइक दिस, फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, एवरीथिंग, इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम माय मॉड्यूल। सो फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार, अगर आप इस तरह से लिखोगे तो सब कुछ फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट किया जाएगा, एवरीथिंग विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम माय मॉड्यूल। तो अगर इन दिस केस इफ यू ट्राई टू रन, तो आपको ये एडिशन का यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे सिम इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ फंक्शंस ही नहीं हो सकते। आगे चल के हम देखेंगे उसके अंदर, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे, तो उसके अंदर हो सकता है कि इसके अंदर कुछ क्लासेस भी हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और इवन द मॉड्यूल और व्हाटएवर द स्क्रिप्ट फाइल इज, इसके अंदर नॉर्मल कोड भी हो सकता है। जैसे नॉर्मल कोड अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया है कि माय वेरिएबल इक्वल टू लेट्स से 40, ये एक नॉर्मल सा वेरिएबल है। और यहाँ पे लेट्स से कुछ भी यहाँ पे आप कर सकते हो कि आंसर इक्वल्स कुछ भी मैथमेटिकल इक्वेशन, सो माय वेरिएबल इनटू माय वेरिएबल, इस तरह से आप कर सकते हो, जिसका वो स्क्वायर वैल्यू है। तो ये भी आप यहाँ पे, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, माय वेरिएबल एंड आंसर। नाउ ये दो जो लाइन है, ये किसी भी फंक्शन का पार्ट है नहीं। ना तो ये एडिशन का पार्ट है, ना ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी का भी पार्ट है नहीं। एक नॉर्मल सा कोड इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो आप इसको भी इंपोर्ट कर सकते हो मेन के अंदर। अगर आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार, तो इसका मतलब है माय वेरिएबल एंड आंसर, ये दोनों वेरिएबल्स भी इंपोर्टेड इन आवर मेन कोड। और अगर आप सिंपली इस तरह से लिखोगे फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट माय वेरिएबल, तो माय वेरिएबल यहाँ पे इंपोर्ट किया जाएगा। आपको अगर यहाँ पे चेकआउट करना है कि ये क्या सच में इंपोर्ट हुआ है, तो प्रिंट, अगर आप यहाँ पे माय वेरिएबल प्रिंट करोगे तो उसका वैल्यू प्रिंट किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंट आंसर करोगे, तो आंसर का वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। तो ना सिर्फ वहाँ के फंक्शंस, even some variables, some classes, some objects, everything can be loaded from my module to any other file if you write like this from my module import star. तो star का मतलब होता है everything, whatever is there in that file, import everything. तो by using this syntax, if you try to run this, तो यहाँ पे पहले तो result equal to 30 मिला जो कि addition है, उसके बाद 40 प्रिंट हुआ है जो कि है my variable, एंड 1600 जो कि है answer की value, that was my variable into my variable. So everything we are getting over here. So this is how we can get, or we can import the functions, some variables from any different module. तो जनरली हम इस तरह से आगे चल के प्रोग्रामिंग अप्रोच हमारा इस तरह से होगा। तो जो भी आपके फंक्शंस है, उसके आप इस तरह से माय मॉड्यूल डॉट पी वाई करके उसके फाइल्स बनाओगे। नाउ यू कैन गिव एनी अदर नेम, लेट्स से ये टेम्परेचर कंपैरिजन डॉट पी वाई, टेम्परेचर रीडिंग डॉट पी वाई, कंट्रोलिंग डॉट पी वाई। तो इस तरह से अलग 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 आप पी वाई फाइल्स बनाओगे, and you will load all the py files in your main code. So here in the main code, you will be loading all your py files from some my module, or from the temperature import this thing, from comparison temperature import that thing, from controlling import that thing. So you will be creating different py files, and you will be loading different functions from it. So this is how our approach will be during the project development. So whenever we are going to handle the projects, हमारा ये अप्रोच होगा कि हमारे बहुत सारे पी वाई फाइल्स बनेंगे,
और जो मेन कोड होगा उसके अंदर हम सिर्फ सारे पी वाई फाइल्स को कॉल करेंगे। सारा कोड हम एक ही फाइल में नहीं लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज़ आगे चल के अगर प्रोजेक्ट में कुछ अपग्रेड करना है, मॉडिफ़िकेशंस करने हैं, तो हमें सिर्फ़ किसी एक पी वाई फाइल को मॉडिफ़ाई करना होगा। तो अगर मुझे इस माय मॉड्यूल में दिक्कत है, तो आई विल मॉडिफ़ाई इन माय मॉड्यूल। अगर किसी और फाइल में दिक्कत है, तो हाँ, आई कैन मॉडिफ़ाई इन दैट फाइल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं बहुत सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ माय मॉड्यूल, दिस इज़ माय मॉड्यूल कॉपी हुआ है, तो इसको मैं रीनेम करता हूँ माय मॉड्यूल 1। ओके। और ये जो माय मॉड्यूल है उसको मैं रीनेम करता हूँ माय मॉड्यूल 2। ओके, तो 2 मॉड्यूल मैंने यहाँ पे बनाए। तो मैं क्या करता हूँ कि एक जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये 2 फंक्शंस रखूँगा और दूसरे मॉड्यूल के अंदर मैं कुछ और फंक्शंस रखूँगा। तो ये जो दूसरा मॉड्यूल है इसके अंदर मैं सिर्फ़ एडिशन सब्सट्रैक्शन रखूँगा और माय मॉड्यूल 2 के अंदर होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। तो इसके अंदर होंगे ये 2 फंक्शंस, इसके अंदर होंगे ये 2 फंक्शंस। नाउ यहाँ पे आप मल्टीपल मॉड्यूल से लोड कर सकते हो। माय मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट एवरीथिंग, उसी के साथ अगर दूसरा मॉड्यूल है तो फ्रॉम माय मॉड्यूल 2 इम्पोर्ट स्टार। तो इस तरह से आप मल्टीपल पाइथन के स्क्रिप्ट बना सकते हो और हर एक में से सब कुछ जो भी चाहिए आपको लोड कर सकते हो। तो माय मॉड्यूल 1 से टोटल होगा, मतलब इसके अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन वो आ जाएगा। माय मॉड्यूल 2 के अंदर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो वो इसके अंदर से आ जाएगा। So this is how you can create multiple modules. So I'll suggest whenever we are going to have the actual project, so you will create only one main file एंड जितने भी फंक्शनैलिटी हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, हर एक फंक्शन के लिए यू विल क्रिएट अ डिफरेंट मॉड्यूल। तो अब उसको यहाँ पे मैं माय मॉड्यूल इस तरह से उसका नेमिंग रख रहा हूँ, लेकिन यू विल बी क्रिएटिंग द स्पेसिफिक नेम। अगर कोई मॉड्यूल या फिर जो कोई लाइब्रेरी टेम्परेचर रीड करने के लिए है, तो यू विल राइट टेम्परेचर रीडिंग डॉट पी वाई और समथिंग लाइक दैट, सो दैट इट विल बी स्पेसिफिक टू दैट। जो भी फंक्शन के नाम आप दोगे, इट हैज टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, उस हिसाब से वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो अगर वो स्पेसिफिक है तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जब भी आप उसको रीड करोगे तो आपको वो इजीली रीडेबल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा एंड उसको मेंटेन करना भी काफी इजी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फंक्शन, सम वेरिएबल्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। इवन सम कोड कैन बी देयर इनसाइड दैट, नॉर्मल कोड भी उसके अंदर हो सकते हैं, ओनली फंक्शंस ही नहीं। जैसे हमने अभी देखा कि उसके अंदर कुछ नॉर्मल कोड भी था और उसके अंदर के हम ना सिर्फ फंक्शन, हम किसी भी वेरिएबल को भी लोड कर सकते हैं और उस वेरिएबल को अपने मेन कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूल। अब हम देखेंगे कि पैकेज क्या होता है। तो मॉड्यूल मतलब तो क्लियर है कि ये सब सारी चीजें मतलब मॉड्यूल होगा। तो पैकेज का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। तो जितने भी मॉड्यूल्स हमारे पास है, अगर उन सब का मैं कलेक्शन करूंगा तो उसे हम बोल सकते हैं पैकेज। तो पैकेज के अंदर मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल होगा, तो इसका सीधा मतलब है कि पैकेज एक फोल्डर होगा और उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे डॉट पी वाई फाइल होंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फिलहाल मैं ये फ़ोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, ये कैश फ़ोल्डर ऑटो जनरेट होता है। तो यहाँ पे आई विल क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर। तो इस फ़ोल्डर को मैं नाम देता हूँ माय पैकेज। ओके, नाउ यहाँ पे मैं माय पैकेज नेम देता हूँ, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये जो 2 फाइल्स हैं, मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और इसके अंदर उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी इफेक्टिवली क्या हुआ है कि मेन फाइल यहाँ पे है और इस पैकेज के अंदर कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल है, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं। तो इस वाले केस में मैं यहाँ पे हूँ मेन फाइल के अंदर और आई वांट टू रन दिस कोड। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से होऊंगा कि यहाँ पे माय पैकेज बना हुआ है, इसके अंदर ये 2 फाइल्स है और ये जो मेन फाइल है वो बाहर है। तो इफ आई वांट टू रन दिस वन, तो विल इट बी पॉसिबल? तो अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा तो इमीडिएटली मुझे एरर मिलेगा कि माय मॉड्यूल 1 जो है वो आपने डिफाइन किया है ही नहीं, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो आपको वो किस तरह से करना होगा? सो फ्रॉम यहाँ पे आपको करना होगा कि फ्रॉम माय पैकेज, फ्रॉम माय
पैकेज import my module 1। ओके, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। सो फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट माय मॉड्यूल 1। और इसके लिए भी ये जो माय मॉड्यूल 2 लिखा है वो मैं इसी तरह से यहाँ पे उसको कॉमा करके माय मॉड्यूल 2 कर सकता हूँ। तो फ्रॉम द पैकेज आपको इंपोर्ट करना है माय मॉड्यूल 1 एंड माय मॉड्यूल 2। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू सी हियर, क्या आपने एडिशन को इंपोर्ट किया है? नहीं किया है। आई हैवंट इंपोर्टेड एडिशन। मैंने क्या इंपोर्ट किया है? माय मॉड्यूल 1 को इंपोर्ट किया है और माय मॉड्यूल 2 को इंपोर्ट किया है। तो एडिशन किसके अंदर है? माय मॉड्यूल 1 के अंदर है। तो फिर मुझे यहाँ पे माय मॉड्यूल डॉट एडिशन इस तरह से करना पड़ेगा। सॉरी, माय मॉड्यूल 1। ओके, माय मॉड्यूल 1 डॉट एडिशन करना पड़ेगा। तो हमने माय पैकेज जो कि एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर से माय मॉड्यूल 1 और माय मॉड्यूल 2 को तो इंपोर्ट कर लिया और इस माय मॉड्यूल 1 के अंदर है एडिशन का फंक्शन, तो मुझे माय मॉड्यूल 1 डॉट एडिशन करना पड़ेगा। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, तो माय मॉड्यूल 2 डॉट मल्टीप्लिकेशन इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ आई विल बी यूजिंग दिस माय मॉड्यूल 1 एंड माय मॉड्यूल 2। So inside this my module 1, I am having this addition, then subtraction. Inside my module 2 I am having multiplication and division. So in this way I'll call the functions and now I'll run this. तो यहाँ पे रन करने से मुझे यहाँ पे मिला है 30 as addition. Now you will say कि मुझे इस तरह से नहीं करना है. I don't want to do like this. I want to use addition only. तो मुझे यहाँ पे addition ही यूज करना है। तो इन दैट केस मैं किस तरह से कर सकता हूँ? तो इन दैट केस आपके लिए फिर से एक यहाँ पे ऑप्शन है। आप यहाँ से फ्रॉम माय पैकेज डॉट माय मॉड्यूल 1 इंपोर्ट एडिशन इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि माय पैकेज के अंदर है माय मॉड्यूल, सो फ्रॉम माय पैकेज डॉट माय मॉड्यूल 1 इंपोर्ट एडिशन, तो इस तरह से यहाँ पे एडिशन को इंपोर्ट किया जाएगा। सो वंस द एडिशन इज इंपोर्टेड फ्रॉम हियर, आप इसको इजीली उसको कॉल कर पाओगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट एज एडिशन जो भी है। सिमिलरली आप माय मॉड्यूल 2 को भी ले सकते हो और उसके अंदर से जो भी फंक्शन चाहिए वो फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल करके उसका रिजल्ट दे सकते हो, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन है, यू कैन कॉल फ्रॉम द माय मॉड्यूल 2 एज वेल। ओके, यहाँ तक तो समझ में आया। तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि किस तरह से हम पैकेज यूज करेंगे एंड किस तरह से हम माय मॉड्यूल को यूज करेंगे और उसको अलग अलग मॉड्यूल्स बना सकते हैं। नाउ क्या ये हो सकता है कि पैकेज के अंदर भी कोई और पैकेज हो? मतलब ये जो माय पैकेज है, इसके अंदर ये 2 फाइल्स है, तो फिर से कैश फ़ोल्डर में डिलीट करता हूँ। तो क्या ये हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई सब पैकेज हो सकता है और उसके अंदर कोई एक फ़ाइल होगी? तो ठीक है, ये जो माय मॉड्यूल 2 है, मैं यहीं पे रखता हूँ, लेकिन आई विल क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर और इसको मैं नाम दूँगा माय सब पैकेज 1 या फिर माय सब पैकेज 1 देता हूँ और उसके अंदर ये जो फाइल है माय मॉड्यूल 1 वो इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, हमारा है मेन डॉट पी वाई सबसे बाहर, फिर माय पैकेज के अंदर है माय सब पैकेज 1 और माय मॉड्यूल 2। तो माय मॉड्यूल 2 को तो आप इजीली इंपोर्ट कर पाओगे फ्रॉम माय पैकेज डॉट माय मॉड्यूल 2 और उसके अंदर का इंपोर्ट एनी जो भी फंक्शन या फिर इंपोर्ट स्टार कर सकते हो, तो सारे फंक्शंस वहां से इंपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन माय मॉड्यूल 1 के अंदर जो एडिशन है, वो है अभी माय सब पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे अभी पहले माय पैकेज है, माय पैकेज के अंदर ये माय मॉड्यूल 2 और माय सब पैकेज है। माय सब पैकेज के अंदर ये सारा है। तो ऐसे कितने भी फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर हो सकते हैं। इट कैन बी 5 फ़ोल्डर्स इनसाइड 1 फ़ोल्डर और अलग-अलग हो सकते हैं। तो एक पैकेज के अंदर सब पैकेज भी हो सकता है। इट कैन बी पॉसिबिलिटी। तो इन दैट केस हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग? तो अगर आप यहाँ पे इस तरह से अभी रन करने की कोशिश करोगे, तो आपको डेफिनिटली एरर मिलेगा कि माय पैकेज डॉट माय मॉड्यूल ये अभी है नहीं, इट्स नॉट अवेलेबल। क्यों नहीं है? क्योंकि
माय पैकेज के अंदर माय मॉड्यूल अभी नहीं है, इट इज इनसाइड माय सब पैकेज वन के अंदर। तो पहले मुझे माय पैकेज के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे आई कैन राइट माय पैकेज डॉट, फिर मुझे माय पैकेज वन के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद मैं जा सकता हूँ माय मॉड्यूल के अंदर। ओके, तो ये जो अपना पूरा ट्री है वो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। सो जो भी आपका जो स्ट्रक्चर है, सो हम माय पैकेज डॉट माय सब पैकेज, तो उसके अंदर माय मॉड्यूल है तो उसके अंदर से मुझे एडिशन चाहिए तो एडिशन। अगर मैं यहाँ पे स्टार लिखूंगा तो सारा इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन राइट, एक तो आप यहाँ पे एडिशन को इंपोर्ट करो, अदरवाइज यू जस्ट राइट स्टार। अगर आप सिंपली स्टार को लिखोगे इस तरह से, तो देन ऑल्सो इट विल परफेक्टली फाइन एंड इट विल टेक दिस वन एंड इट विल परफॉर्म वॉट एवर टास्क वी हैव असाइन टू इट। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा तो आई एम गेटिंग 30 एज अ रिजल्ट। तो ये सारा फंडा है अपने पैकेजेस का, मॉड्यूल्स का एंड फंक्शंस का। तो फंक्शन मतलब अ स्मॉल कोड व्हिच इज डूइंग सम टास्क, and the module matlab collection of functions, and the package is nothing but collection of modules. The package can have different sub packages as well. तो यहाँ पे और भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे माय पैकेज के अंदर माय सब पैकेज वन है और इस माय सब पैकेज के अंदर और भी एक पैकेज सब पैकेज हो सकता है, उसके अंदर भी और एक सब पैकेज हो सकता है। तो इट कैन बी अ ह्यूज ट्री। ओके, इस तरह से अपना पैकेज बनेगा। तो इन सब सारे कोड्स को, ऐसे छोटे-छोटे कोड्स का मिलके एक मॉड्यूल बनेगा, जिसे हम फंक्शन बोलते हैं। उन सब फंक्शंस को कलेक्ट करके एक मॉड्यूल बनेगा और ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स पकड़ के एक पैकेज बनेगा और ये ऐसे बहुत सारे सब पैकेजेस पकड़ के हमारा एक बड़ा पैकेज बन सकता है। तो उसके अंदर बहुत सारे सब पैकेजेस, मॉड्यूल्स, बहुत सारे फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ोल्डर, इट कैन बी द पॉसिबिलिटी। तो इससे हमारा एक बड़ा पैकेज बनेगा और जो कि हम अभी एक बार मैंने ये पैकेज बना दिया, तो आई कैन यूज़ दिस पैकेज इन एनी डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो लेट्स से मेरे पास अभी 10 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, तो आई वांट टू वर्क ऑन 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और उसके अंदर हर एक प्रोजेक्ट में कुछ सिमिलर फंक्शंस लगने वाले, कुछ पैकेज के अंदर के कुछ फंक्शन लगने वाले। तो मैं क्या करूँगा, ये सारे जो रीयूजेबल कोड्स है, जो अलग-अलग कोड के अंदर, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होने वाले हैं, सो आई विल मेक अ पैकेज ऑफ इट, उसका एक मैं पैकेज बना दूंगा एंड आई विल यूज दैट पैकेज। मैं सिंपली उस पैकेज को यहाँ से वहाँ कॉपी करूंगा और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं वो सेम पैकेज यूज कर पाऊंगा, जिससे मेरा कोड डेवलपमेंट काफी फास्ट हो जाएगा। आई कैन आई जस्ट हैव टू मेक द मेन फाइल और जो भी फंक्शंस है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, आई विल कॉल from the different packages that I have created. Then I have created some sub packages, then main packages, again modules. So that's the important thing. So whenever you are developing projects, you just create the collection of different functions, different modules, different sub packages and then packages। तो आप आपका एक पैकेज बनाओ। फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग फॉर इमेज प्रोसेसिंग स्टफ, तो इमेज रिकॉग्निशन का प्रोजेक्ट हो, मे बी फेस रिकॉग्निशन, मे बी पाम रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, कुछ भी हो सकता है। इन सारे चीज़ों के लिए एक जो बेसिक कोड्स है वो सब के लिए कॉमन लगेंगे। हो सकता है एप्लीकेशन के हिसाब से थोड़ा चेंजेस होंगे, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस will be common for the image recognition problem because after all it's image recognition। तो हर एक के लिए सेम कोड लगेंगे। So what you can do, you can create a one package for that। तो एक बार आपने इमेज रिकॉग्निशन के लिए एक पैकेज बना दिया बाय द नेम लेट्स से इमेज रिकॉग्निशन, then in future if you want to recognize faces, simply you will create a small code and within few hours you will be able to make face recognition wala project। if you want to recognize some fruits in a simple form, आप एक सिंपल कोड बना के वो जो इमेज रिकॉग्निशन का पैकेज है उसके अंदर के फंक्शंस यूज करके विद इन फ्यू आवर्स यू विल बी एबल टू मेक द फ्रूट रिकॉग्निशन वाला प्रोजेक्ट। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट चाहिए वो एक प्रोजेक्ट, किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट होगा, आप अगर एक लाइब्रेरी आपका बना के रख दोगे तो सिंपली यू विल जस्ट हैव टू कॉल द फंक्शंस फ्रॉम दैट लाइब्रेरी, दैट्स इट। और आपको इंटरकनेक्ट करना होगा एंड योर प्रोजेक्ट विल बी रेडी विद इन फ्यू आवर्स ओनली। आपको इवन डेज मंथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद इन फ्यू आवर्स यू कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल्स, फंक्शंस एंड पैकेजेस। अगर हम फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस यूज करते जाएंगे तो इस तरह से होंगे।
सेकेंडली, आप एक तो आपके खुद के बनाए हुए पैकेजेस को यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे ने जो पैकेजेस ऑलरेडी बना के रखे हैं, you can also use those packages as well. फॉर एग्जाम्पल, किसी और ने अगर एक इमेज प्रोसेसिंग के लिए, इमेज रिकॉग्निशन के लिए, या फिर इमेज प्रोसेसिंग के जितने भी ऑप्शंस है या फिर जितने भी फंक्शंस उसके अंदर है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड पैकेज बनाया हुआ है, तो आप उसके पैकेज को भी आपके कोड के अंदर या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर और आपके पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर लोड कर सकते हो एंड उसको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इमेज प्रोसेसिंग के लिए ओपन सीवी करके एक पैकेज है, दैट स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन। तो जो भी इमेज प्रोसेसिंग का काम है, जो भी वीडियो प्रोसेसिंग का काम है, जिसके अंदर वीडियो से कुछ फ्रेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो का में जो इमेज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसी इमेज को कलर में है तो उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, उसमें से ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो इन फॉर दैट केस यू नीड अ इमेज प्रोसेसिंग वाला पैकेज। तो एक तो आप आपके खुद के फंक्शंस बना सकते हो फॉर इमेज प्रोसेसिंग, या फिर किसी और ने मेहनत करके छोड़ी है आपके लिए और उसने वो जो पैकेज है वो ऑनलाइन अपलोड कर लिया है, तो आप वहां से भी उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको उसके लिए सिंपली उस पैकेज का जो भी नेम है वो आपको गूगल पे सर्च करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप गूगल पे जाते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप सिंपली डालते हो कि ओपन सीवी पाइथन पैकेज। तो आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे, आपको एक वेबसाइट की लिंक मिलेगी, दिस इज़ पाई वेबसाइट, ओके? तो दिस इज़ पाई.org, और उसके अंदर ये ओपनसीवी का पाइथन का पैकेज है जिसका लेटेस्ट वर्ज़न है 4.5.3.56, तो ये इसका लेटेस्ट वर्ज़न है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो इसका इंस्टॉलेशन कमांड यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इंस्टॉलेशन कमांड, सिंपली यू कॉपी हियर। तो आपको इस कमांड को कॉपी करना है। तो एक बार आप इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर पाओगे, और इफ यू कॉपी दिस कमांड, तो आपको यहाँ पे ओपन करना होगा सीएमडी। आपका सीएमडी ओपन करना है, और यहाँ पे जो कमांड आपने वहां से कॉपी किया है उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लो, पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन, और एंटर कर लो। तो इट विल automatically download your package from the internet and it will install in your Python environment. In my case, this was already installed, so it is saying requirement already satisfied. तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि requirement already satisfied है। Otherwise, it will download from the internet and it will install in your computer. तो ये एक मेथड हुआ, इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली आप यहाँ पे जा सकते हो। ओके, ये जो टर्मिनल यहाँ पे खुला है, यहाँ पे ही आप उस कमांड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पिप इंस्टॉल ओपन सीबी डैश पाइथन। तो जो भी पैकेज वहाँ पे ऑनलाइन आपको मिलता है, यू कैन सिंपली राइट हियर पिप इंस्टॉल ओपन सीबी डैश पाइथन, यहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट मिला वही यहाँ से मिल रहा है। तो आप आपके डायरेक्टली फ्रॉम द विजुअल स्टूडियो कोड यू कैन इंस्टॉल एनी पैकेज फ्रॉम द इंटरनेट, दैट्स वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज, आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो और कमांड प्रॉम्प्ट में वो कमांड पेस्ट कर लो और वहां से वो इंस्टॉल कर लो। तो इन दोनों केसेस सही है, आप टेक्निकली कोई भी पैकेज आपके कंप्यूटर के अंदर प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाओगे। और एक बार आपने उस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद यू कैन सिंपली यूज दैट पैकेज। तो यहाँ पे जैसे मैं माई पैकेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट cv2, जो कि अभी ये पैकेज है जो हमने यूज करा है, तो दिस इज द पैकेज ओपन सीवी डैश पाइथन जो है, उसको cv2 करके इंपोर्ट किया जाता है। तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन रन दिस वन, तो ये इजिली रन करेगा। ये cv2 को कुछ एरर थ्रो नहीं किया है। तो फिर उसमें से फ्रॉम सीवी टू इंपोर्ट दिस थिंग, फ्रॉम सीवी टू इंपोर्ट दैट थिंग, ऐसे कर सकते हो, या फिर फ्रॉम सीवी टू इंपोर्ट स्टार, इस तरह से कर सकते हो। नाउ दिस पैकेज is automatically downloaded and it is installed in your computer। तो एक बार वो इंस्टॉल होने के बाद आपको इस पैकेज को आपके फोल्डर में रखने की जरूरत नहीं, और इस मेन, जैसे हमारा जो खुद का पैकेज है वो हमने यहाँ पे रखा है, सो दैट वी कैन एक्सेस इट। लेकिन ये जो पैकेज है cv2 जो कि आपने इंस्टॉल करा है, तो जो जहाँ पे आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है सी ड्राइव के अंदर,
मोस्टली सी ड्राइव के अंदर होता है। उसके अंदर साइट पैकेजेस करके एक फ़ोल्डर होता है एंड उसके अंदर ये सीवी2 के सारे कोड, सारे मॉड्यूल, सारे लाइब्रेरीज़ वहाँ पे पेस्ट हो जाती है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली उसका एक्सेस ले सकते हो। तो इस तरह से यू विल डाउनलोड एंड इंस्टॉल एनी न्यू पैकेज जो कि किसी और ने बनाया है एंड यू कैन यूज़ इन योर प्रोजेक्ट। तो एक तो आप आपका खुद का पैकेज भी बना सकते हो एंड यू कैन आल्सो यूज़ द डिफरेंट पैकेज व्हिच इज़ होस्टेड ऑनलाइन किसी और ने उसको बनाया हुआ है एंड यू कैन सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल एक पैकेज ऐसा है कि जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर होता ही है। जैसे आप पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैकेजेस पाइथन के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। जैसे कि टाइम लाइब्रेरी होगी या फिर टाइम पैकेज हुआ या फिर डेट टाइम पैकेज है तो वो डेट टाइम पैकेज। So as you install Python, whenever you downloaded Python, so few basic packages will be automatically installed. जैसे कि टाइम है और कुछ है वो सारे इंस्टॉल हो ही जाएंगे। कुछ पैकेजेस हैं जिसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय यूजिंग pip install कमांड। तो आप यहाँ पे वो उसकी कमांड देखोगे क्या है, उसको कॉपी करोगे। एक तो आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करोगे या फिर यू विल पेस्ट इन वीएस कोड टर्मिनल। तो कहीं से भी आप उस पैकेज को प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाओगे। आगे चल के हम बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने वाले, जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमें नए लाइब्रेरीज लगेंगी, जैसे कि हमें नमपाई लगेंगी, पांडास लगेंगी, मैटप्लॉटलिब लगेगी, तो हर एक टाइम आई विल बी टेलिंग यू कि हाउ टू इंस्टॉल एडिशनल पैकेज। तो वो उस वाले मॉड्यूल के अंदर मैं वो बताते जाऊंगा। सेकेंडली, आप किसी पैकेज का वर्जन कंट्रोल भी कर सकते हो कि मुझे ये स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, 4.2 वर्जन चाहिए ओपन सीबी का, तो आप उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किसी पैकेज का एक स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना किस तरह से। सिंपली आपको लिखना होता है कि पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डबल इक्वल्स टू एंड उसका वर्जन। तो अभी हमने यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा कि पिप इंस्टॉल, सॉरी, यहाँ पे हमने वो पिप इंस्टॉल डाल दिया, मान के चलो पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन। तो ये लेटेस्ट वर्जन जो भी है वो उसको कंसीडर करके इंस्टॉल करेगा। लेकिन अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू करके लेट्स से 4.2, तो यहाँ पे ये 4.2 वर्जन ही इंस्टॉल कर लेगा। सो दिस इज हाउ आप उसका ये एक पर्टिकुलर वर्जन या फिर कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कुछ पैकेजेस ऐसी होती है कि व्हिच इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, व्हेनेवर यू इंस्टॉल पाइथन ऑटोमेटिकली दैट पैकेज इज इंस्टॉल्ड। तो वैसे ही एक पैकेज है पाइथन डेट टाइम पैकेज। तो वो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट डेट टाइम, ओके। तो ये जो पैकेज है यू कैन यूज लाइक दिस इंपोर्ट डेट टाइम। सो दिस डेट टाइम पैकेज इज हैविंग ऑल द फंक्शनलिटीज रिलेटेड टू द डेट टाइम। उसका फॉर्मेटिंग हो सकता है या फिर करंट सिस्टम का टाइम लेना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर जो भी आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, उस रिपोर्ट को आपको एक टाइम स्टैम्प देना है कि इस टाइम पे ये रिपोर्ट हुआ है। तो वो जो टाइम है यू कैन टेक फ्रॉम द सिस्टम। तो उसके लिए या फिर सिस्टम का टाइम लेना, जो कुछ भी करना है, तो उसके लिए वी कैन यूज द डेट टाइम पैकेज। तो नाउ आई एम टेलिंग यू कि हमने किस तरह से जो अपने खुद से बनाया हुआ पैकेज है उसको यूज करा है। And now we'll discuss how we can use somebody else package जो कि किसी और ने बनाया हुआ है and I'm readily using that. So now one such package is dead time, जो कि आप बोलोगे कि ये पैकेज का तो कोई फोल्डर है नहीं अपने ये स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे माई पैकेज करके फोल्डर एंड मेन डॉट पी वाई करके फाइल है। सो इफ आई एम यूजिंग डेट टाइम देन दिस डेट टाइम का जो भी फोल्डर है या फिर जो भी डॉट पी वाई फाइल है दैट शुड बी देयर इन आवर करंट फोल्डर। तो ये जो पैकेज है इट इज प्रीवियसली इंस्टॉल्ड व्हेनेवर यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन, और इसके जो भी पीवाई फाइल है वो आपको मिलेगी पाइथन के इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर। तो आप अगर सी ड्राइव में जाओगे उसके अंदर पाइथन का इंस्टॉलेशन फोल्डर प्रोग्राम्स फाइल के अंदर या फिर यूजर्स के अंदर आप अंदर जाओगे तो यू विल फाइंड वो एक्चुअली डायरेक्टरी भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपको कि ये डायरेक्टरी है। उसकी सी यूजर्स देन कंप्यूटर का नेम ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन 38। इसके अंदर पाइथन 38 इस फोल्डर के अंदर ये विल फाइंड
कि जितने भी पैकेजेस, जितने भी लाइब्रेरीज आपने पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल करी है, या फिर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन सॉफ्टवेयर some packages are automatically installed, वो सारे packages you will find in python 38 folder inside your C drive, एंड उसके अंदर यू विल फाइंड कि देर आर सम साइड पैकेजेस, सम लाइब्रेरीज, और उसके अंदर जो भी चाहिए वो फंक्शंस आप वहां से कॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको वो फोल्डर आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में होने की जरूरत नहीं है। सो नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट करंट डेट टाइम और सिस्टम्स डेट टाइम, आज का जो सिस्टम का यहाँ पे टाइम है कि 28 जुलाई 2021, एंड जो भी टाइमिंग यहाँ पे हुई है, इफ आई वांट टू प्रिंट दैट टाइम, सिंपली आई कैन कॉल हियर दिस फंक्शन, और यहाँ पे मैं dt करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे डेट टाइम डॉट डेट टाइम के अंदर डॉट डेट टाइम है, एंड इसको एक तो आपको ईयर मंथ एंड डे देना होता है इस फंक्शन को, और अगर आप यहाँ पे डॉट नाउ फंक्शन यूज करोगे तो यहाँ पे करंट टाइम मिलेगा। तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट dt, so you'll find that you will get the current system's time। तो कुछ बेसिक फंक्शंस हम यहाँ पे करने वाले, तो यहाँ पे आपको मिला है दिस थिंग, दिस इज 2021 7th month 28, then 17 56 34, दिस इज 17 56 34, ये जो अभी सिस्टम का जो कुछ भी टाइमिंग है वो टाइमिंग, एंड 34.499836, तो ये जो 4.4, ये 34 तो सेकेंड है, 17 आवर्स 56 जो भी है वो अपना मिनट्स है, एंड दिस इज 499836, ये जो कुछ भी आपको मिला है ना, दिस इज माइक्रो सेकेंड, तो ये माइक्रो सेकेंड है। तो इस तरह से यू कैन एक्चुअली टेक द करंट टाइम फ्रॉम योर सिस्टम। तो ये पूरा टाइम का पूरा इंक्लूडिंग डेट एंड टाइम मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो इन दैट केस डेट टाइम डॉट डेट, और उसको भी अगर ये एक्चुअली डेट टाइम फॉर्म करने के लिए, लेकिन मुझे आज की चाहिए तो टुडे, and then I can print, so I'll be getting today's date, so I'll get this is 2021 7/28, इस तरह से I'll be able to take the current date। तो बेसिकली आप ये बोलोगे कि ये सब फंक्शंस क्या रिमेंबर करने पड़ेंगे कि डेट टाइम डॉट डेट, डेट टाइम डॉट टुडे, डू आई हैव टू रिमेंबर ऑल दिस स्टफ? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आप सिंपली डेट टाइम का डॉक्यूमेंटेशन गूगल पे सर्च कर सकते हो, सर्च फॉर डेट टाइम पाइथन पैकेज डॉक्यूमेंटेशन, तो इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन एक पीडीएफ आपको मिलेगा, जिसके अंदर इसके यूजेस, किस तरह से उसको यूज करना है, किस तरह से उसको कॉल करना है, वो सारी चीजें उसके अंदर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि ये डेट टाइम क्या हो सकता है, ये डेट टाइम क्या होगा, क्या ये पैकेज होगा, मॉड्यूल होगा, क्या होगा, ये डेट टाइम जो बड़ा है वो क्या होगा, ये क्या हो सकता है? What can be this? Just answer in the chat whether it is function. Okay, Mangesh has answered correctly. Package. Okay, date time package हो सकता है। What could be this date? Date क्या हो सकता है? Okay, correct. Vaishnavi has answered correctly. It can be a module. Okay, एक module हो सकता है। And today क्या हो सकता है? What can be this today? दिस विल बी अ फंक्शन, करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो अपना ये जो फंडा है वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डेट टाइम के अंदर लेट से डेट टाइम करके एक पैकेज है, और उस पैकेज के अंदर डेट एक मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल के अंदर टुडे एक फंक्शन है। तो इस तरह से अगर उसको यूज करना है तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि इस तरह से मुझे डायरेक्टली टुडे यूज करना है, तो यहाँ से आप फ्रॉम डेट टाइम डॉट डेट टाइम जो हमने वहां पे किया ना, डॉट डेट, ओके, और यहाँ से आप फ्रॉम कर सकते हो, फ्रॉम डेट टाइम डॉट डेट इम्पोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है मुझे, टुडे इंपोर्ट करना है, तो मैं इस तरह से टुडे को इंपोर्ट कर लूंगा। फिर मुझे ये सारा चीज यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, जो कि फंडा हमने अभी सीखा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर पाओगे, एंड सिंपली आपको यहाँ पे ओके, व्हाट्स द एरर, डेट टाइम डॉट, इज देयर एनी स्पेलिंग एरर?
Okay, or let's try with the date. Okay, so date time is not the package. That's what it is saying. It could be a class. Okay, यहाँ पे हम जो package बोल रहे हैं ना, so that cannot be the package. So date time dot date time जो था, it can be a class. So आगे चल के हम देखेंगे कि in object oriented function कि वहाँ पे वो package and classes क्या होते हैं. So that's the error it is throwing. तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा skip कर लेते हैं. सो एज इट इज़ नॉट द पैकेज, सो हम उसको इस तरह से नहीं लिख सकते. इट कैन बी अ क्लास और उसका हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं. सो डेट आगे यहाँ पे अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी नहीं है, सो दैट्स कि यहाँ पे वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो बाद में हम देखेंगे. सो डेट टाइम कैन बी अ क्लास जिसके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके कुछ अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं. सो दैट्स द केस. तो यहाँ पे इसके अंदर डेट टाइम एंड डेट टाइम ये क्लासेस होते हैं. तो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सो दैट विल डिस्कस इन फ्यूचर. सो नाउ एज इट इज नॉट द पैकेज, सो फ्रॉम दिस डिस्कशन आपने जो बोला था कि अगर मैं उस तरह से लिखूंगा तो वो क्या होगा, तो इट्स वेरी करेक्ट कि वो पैकेज एंड मॉड्यूल और फिर उसके अंदर फंक्शन होगा. लेकिन डेट टाइम एक पैकेज नहीं है, वो एक्चुअली एक क्लास है. सो दैट विल डिस्कस लेटर ऑन जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे कि वो क्लासेस किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं. एंड वंस वी डिफाइन सम क्लासेस, तो हम वहाँ से उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे वी आर हैविंग सो मेनी क्लासेस लाइक डेट इज अ क्लास, then time is a class and date time is a class. So let's talk about the date class. So we'll first of all we'll discuss about the date class. So for that again we'll import this import date time, and from this date time मैं किसी भी डेट को कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मुझे देना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. इट इज़ आस्किंग द फर्स्ट आर्गुमेंट शुड बी ईयर. सो वो ईयर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा. लेट्स से आई एम गिविंग 2021. देन सेकेंड आर्गुमेंट इज मंथ विच इज हैज टू बी इंटीजर ओनली. तो लेट्स से माई मंथ इज 7 एंड द थर्ड आर्गुमेंट इज डे एंड दैट इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड. सो आज की डेट लेट्स से 28. तो इस तरह से मैं यहाँ पे दे दूंगा. ऑफ कोर्स इट शुड बी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. तो इस तरह से मैंने 2021, 7 एंड 28 डे दिया है. तो मैं किसी भी इन सारे वैल्यूज को इफ आई स्पेसिफाई दीज वैल्यूज, ऑटोमेटिकली इट विल मेक इट to the date, and then I can access every single thing from it. तो उसमें से मैं every single thing access कर पाऊंगा बाद में. तो यहाँ पे मैं करूंगा तो it is printing 2021 0728. तो उसको उसने डेट में कन्वर्ट कर लिया जो आपने यहाँ पे आर्गुमेंट दिए थे. इट हैज कन्वर्टेड टू डेट. इवन अगर आपको चाहिए कि आज की डेट क्या है, तो जैसे हमने टुडे यूज किया था, so again, we can use here. So from date time dot date dot today dot today इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. And then I can print the today's date, and which is again 2021 07 28. So in this way also we can proceed. Like this also we can go. तो इस तरह से हम डेट करंट डेट जो कुछ भी है उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मुझे यहाँ पे पता चला है कि दिस इज टुडेज डेट और इसमें से मैं सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो आई कैन राइट डी टी डॉट ईयर. तो यहाँ पे आई कैन राइट ईयर इक्वल्स टू डी टी डॉट ईयर. और अगर मुझे मंथ वगैरह करना है तो उसके मैं सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मुझे मंथ चाहिए, सो मंथ इक्वल्स टू देन डे इक्वल्स टू डी टी डॉट ईयर है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा डी टी डॉट मंथ. एंड वैसे ही यहाँ पे होगा डी टी डॉट डे. तो इस तरह से हो जाएगा. तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो जो भी डेट मेरी बनी है उसमें का मैंने ईयर इक्वल टू 2021, मंथ इक्वल टू 7, डे इक्वल टू 28. तो इस तरह से इजीली मैं उसको स्प्लिट कर पाऊंगा एंड आई विल बी एबल टू एक्सेस द करंट डेट एंड
टाइम और उसका जो भी ईयर मंथ एंड डे है, आई विल बी एबल टू एक्सेस इट वेरी इजीली। सिमिलरली उसके अंदर टाइम भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक क्लास है, तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट द टाइम ऑब्जेक्ट्स, तो उसको टाइम के हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन इवन क्रिएट जो भी टाइम है उसका इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से लिया कि उसका ईयर मंथ एंड डे लिया, सो ऑल्सो वी कैन टेक फॉर द टाइम इफ यू कंसिडर द टाइम, तो टाइम का भी वी कैन कंसिडर कि उसका मिनट, आर एंड उसका सेकेंड वी कैन एक्सेस। तो हमने अभी देखा कि डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन यूज किया था स्टार्टिंग में, तो यूजिंग दैट वी हैव रिसीव्ड डेट एज वेल एज द टाइम, एंड उसका सब कुछ हम यहाँ पे यूज करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम डेट टाइम यूज करेंगे तो डेट टाइम में से भी हम वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द ईयर मंथ and day as well as the timing information. So it's possible to print year, month and other stuff. Now for example, अगर आप यहाँ पे उसके डेट टाइम के टाइमिंग्स एंड अदर स्टफ डिफाइन करते हो, इफ यू डिफाइन सम उसके ईयर मंथ डे एज वेल एज सम टाइम, सो कैन वी एबल टू एक्सेस उसके जो भी ईयर मंथ एंड वो सारा प्रिंट कर पाएंगे। तो हम उसको पहले उस तरह से देखेंगे कि लेट्स क्रिएट अ डेट टाइम, सो फ्रॉम डेट टाइम डॉट डेट टाइम, उसके अंदर आपको ईयर देना है, तो लेट्स से ईयर इज 2021, उसके बाद आपको मंथ देना है, सो लेट्स से इट इज 7, इस तरह से हमने अभी देखा, सॉरी इट शुड बी 7 ओनली, इंटीजर वैल्यू यहाँ पे चाहिए, एंड डे लेट्स से 28 है आज की, तो इस तरह से हमने दे दिया है। तो अगर मैं इसका ये प्रिंट करूंगा तो आई विल बी गेटिंग ऑल दीज स्टेप्स लाइक दिस ओनली 2021, 7 एंड 28। आप यहाँ पे टाइमिंग भी दे सकते हो, लेट्स से 5 is the hour, then 20 is the minutes, and then let's say seconds हम दे देंगे 30 seconds, और अगर आपको चाहिए तो माइक्रो सेकेंड भी आप दे सकते हो, और वो जो माइक्रो सेकेंड है लेट्स से यहाँ पे 45 माइक्रो सेकेंड्स है। तो यहाँ पे 2021 ईयर, 7 मंथ, 28 आपका है डे, 5 आवर, 20 मिनट, 30 सेकेंड, 45 माइक्रो सेकेंड, और आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। प्रिंट यहाँ पे अगर आप लिखोगे कि आर इक्वल टू टी डॉट आर, देन प्रिंट मिनट इक्वल टू dt डॉट minute, and then print seconds equals to dt dot second, इस तरह से, and even if you want to print the microsecond, so print microseconds equals to dt dot microsecond, okay, इस तरह से you can print it out। और if you want to print this entire string first, तो आप यहाँ पे print, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट टाइम equals to I'll create this dt. So first of all, we'll print the dt and then we'll see the each and every parameters. So if you run this thing, now यहाँ पे हमें सारी चीज़ें clear हो रही है। So now you see the date time equal to, in this way it will print कि 2021 7th month and then 28 day, then this is 5 20 30, and this is microsecond 30.00045, this is microseconds, then this is 45 microseconds actually. So year equal to 2021, this month equal to 7, the day equal to 28, hour equal to 5, minute equal to 20, second equal to 30 and microsecond equal to 45। तो इन दिस वे आप किसी भी डेट को या फिर किसी भी डेटा को डेट टाइम के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो, एंड उसके जो भी टाइम का डेटा है वो इस तरह से उसको एक्सेस कर पाओगे। तो इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट दिस डेट टाइम लाइब्रेरी, इसके अंदर के सारे फंक्शंस आप यूज कर पाओगे। नाउ इंटरेस्टिंगली
आप इसको आपके हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू फॉर्मेट इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप उसको आपके हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो करंट सिस्टम का टाइम है, उसमें से मुझे अभी जो फॉर्मेटिंग है वो सिर्फ उसका आवर, मिनट एंड सेकंड इस फॉर्मेट के हिसाब से मुझे उसको डिस्प्ले करना है। तो व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन टेक दिस डेट टाइम डॉट डेट टाइम or dot, I'll call the now function, and now I'll be getting the current timing. तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट dt, तो मुझे मिलेगा अभी का जो भी टाइमिंग है। तो इफ आई प्रिंट दिस वन, आई विल बी गेटिंग दिस, अभी जो करंट सिस्टम का जो कुछ भी टाइम रनिंग चल रहा है वो टाइमिंग यहाँ पे आई विल बी गेटिंग लाइक दिस। ओके, सो नाउ अगर मुझे इसको फॉर्मेटिंग करना है एज पर माई रिक्वायरमेंट, मुझे जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से मुझे फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर एग्जांपल, ये जो नाउ है या फिर वॉट एवर दिस डी टी आई एम गेटिंग, इसको मुझे फॉर्मेटिंग करना है मेरे हिसाब से। तो लेट्स से टी इक्वल्स टू डी टी डॉट, तो नाउ आई कैन इसको एज पर माई रिक्वायरमेंट आई कैन फॉर्मेट। सो दिस इज स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, तो इसमें मुझे फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होगा ना। फॉर्मेट मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे चाहिए परसेंट आवर, आवर के बाद मुझे कोलन चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए परसेंट मिनट, और मिनट के बाद मुझे चाहिए कोलन, एंड उसके बाद मुझे चाहिए परसेंट एस। तो इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए, जो कुछ भी मेरा टाइम है वो इस फॉर्मेट में चाहिए। तो अगर मैं उसको टी प्रिंट करूंगा, okay, after formatting, if I print this, so this time instead of getting printed in this format, it will be printed in this format जो कि मैंने यहाँ पे specify किया है। तो after running this, it is printing only time, it is not printing date because I haven't mentioned date over here। लेकिन मुझे ये इस वाले फॉर्मेट में अभी नहीं चाहिए, मुझे इसमें अंदर डेट भी चाहिए। तो आप यहाँ पे उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो लेट्स से आई वांट टू ऐड सम डेट हियर, सो यहाँ पे लेट्स से यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट परसेंट वाई, ओके, देन उसके बाद डैश, you want percent month, then dash, then percent, let's say day, okay, so in this format you want. ठीक है, otherwise you can take this as a d, and then यहाँ पे मुझे comma चाहिए, let's say after that it will be like this। So in this format, let's say you want to get your data printed, so percent m, percent d, and that dash dash all the format, so in this way it should print। So if you save this thing and if you want to print in this particular format, then इट विल टेक इन दिस फॉर्मेट। सो पहले ये आपका जो भी है पूरा डेटा, इन दिस वे इट इज गोइंग टू प्रिंट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो आप इसके जो फॉर्मेटिंग है वो आपके हिसाब से कुछ भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, वॉट एवर फॉर्मेट यू वॉन्ट, यू कैन यूज दैट फॉर्मेट, एंड एज अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट इट विल गेट प्रिंटेड। ओके, सो फॉर्मेटिंग कुछ भी हो सकती है, मंथ, ईयर, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको प्रिंट करवा सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट it will print the current date and time। also, अगर किसी ने ऑलरेडी कुछ फॉर्मेटिंग करके मेरे पास डेट टाइम है, so let's say I am already having some date with me and I want to extract its डेट टाइम या फिर जो कुछ भी उसके बेसिक स्टफ है, तो वो मुझे चाहिए एक्सट्रैक्ट करनी है। तो आई कैन यूज एस टी आर पी टाइम फंक्शन। सो फ्रॉम दैट फंक्शन आई विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट इट्स डेट, मंथ एंड ईयर वाला स्टफ। तो जो भी चाहिए उस हिसाब से मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर दैट पर्पज देयर इज अ एस टी आर पी टाइम फंक्शन। तो उसके अंदर हमें सिर्फ डेट जो भी अपना स्ट्रिंग है उसको देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई यूज टी इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम, ये सारा नहीं चाहिए मुझे, डॉट एस टी आर पी टाइम, तो इसके अंदर आपको देना होता है डेट स्ट्रिंग। तो लेट्स से यहाँ पे मैं डेट स्ट्रिंग दे देता हूँ, इट कैन बी लेट्स से सिंगल कोट्स के अंदर, लेट्स से 2021 डैश, लेट्स से इट इज मंथ, सो सेवेंथ मंथ डैश,
is let's say 28 is the day. So this is my string, this is the date time string, और उसका जो भी format है that I want to specify. So I'll specify the format over here. So format can be, let's say it can be, let's say percent d, then dash, percent, uh, let's say it could be percent d, percent m, sorry, it is percent y actually. So percent y, then percent m, and then percent, let's say date, या फिर d. So in this way it can be there, this could be the format. So in this way आप उसको इस तरह से भी एक्सेस कर पाओगे, और या फिर जो भी उसका डेट टाइम है इन दिस फैशन, इफ यू वांट टू टेक इट आउट, सो यू कैन टेक इट आउट इन दिस पर्टिकुलर वे एज वेल. तो इस तरह से भी उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, या फिर अगर ये डेट आप कुछ और भी मेंशन कर देते हो, सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दिस एस टी आर पी टाइम फंक्शन. तो अगर यहाँ पे डेट कुछ न्यूमरिक है या फिर दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग है, तो आपको इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हो. इफ द स्ट्रिंग इज इन टर्म्स ऑफ सम मंथ, और इन टर्म्स ऑफ सम 21 जून 2018, इन दैट वे अगर वो है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो. तो एनी हाउ इट कैन बी डन. तो उसके हिसाब से आप उसको प्रिंटिंग कर सकते हो, रिवर्स वे में भी जा सकते हो. तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको है ऑप्शन एस टी आर एफ फॉर्मेट, और उसको रिवर्स करने के लिए आपको है एस टी आर पी टाइम. ओके, एस टी आर पी फॉर्मेट टाइम, एंड एस टी आर पी फॉर्मेट, एस टी आर पी फॉर्मेट. अगर टाइम करोगे तो आप किसी भी इसको फॉर्मेटिंग करके उसको डेट टाइम में लेके जाओगे. और अगर कोई आपको स्ट्रिंग दे दी है ऑलरेडी, तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू द बैक इन सम डेट टाइम, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कुछ अलग फॉर्मेटिंग टेक्निक. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं डेट की. यहाँ पे अगर जो आपकी डेट है, इट्स गिवन इन सम डिफरेंट फॉर्मेट. लेट्स से यहाँ पे जून फर्स्ट एंड लेट्स से 2005, इस तरह से आपको दी है. एंड आगे उसका जो भी टाइमिंग है, सो दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू. लेट्स से 1:33 PM. So in this way, it is already given to you. Now, if you want to convert that, this is the string that you can get it from any, or you can have this string. तो इसमें से आपको बाकी की चीज़ जैसे कि टी डॉट डे, मंथ, ईयर, ये सारे एक्सट्रैक्ट करने होंगे. सो इन द अगर आपको इस तरह से उसको दे दी है, तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस एंड यू कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट. तो यहाँ पे यू कैन यूज द परसेंट बी, क्योंकि ये जो अभी हमें दिया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ जून, तो इसके लिए अलग फॉर्मेटिंग है. सो दैट फॉर्मेटिंग आई टेल यू कि क्या फॉर्मेटिंग है. सो अगेन परसेंट डी, अगेन you have percent y because this is the year. Okay, at the end it is year given to you. एंड देन आगे चल के आपको जो भी ये टाइमिंग दिया है, दिस इज दैट यू कैन ऑल्सो टेक इट आउट कि उसका जो टाइम है, एंड दैट इन टर्म्स ऑफ जो कुछ भी उसका मिनट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो अगेन यू कैन टेक इट लाइक परसेंट आई कोलन percent m, which is in minutes, it is in the minutes format. So that's how I'm taking it like this. And percent p as it is given in the am and pm format. So like this you can convert this data and string, and after that you can print this t. So after that it will be getting formatted in this particular way. So after doing that, it will be formatted like this: 2005 6 01 13 33 00 seconds. तो इसके जो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स है, सो आई विल शेयर दैट टेबल इन अ व्हाट्सएप ग्रुप कि जब बी कब यूज करना है, या फिर परसेंट डी कब यूज करना है, या एज इट इज डे सो इट विल बी डी. सो यहाँ पे मंथ है, अगर वो डायरेक्टली हमने उसका नंबर न्यूमरिक दिया है, तो विल बी यूजिंग दिस परसेंट एम. इफ इट इज इन जून लाइक दिस, इन दैट केस आई कैन यूज द परसेंट बी. तो ये एक टेबल है. सो यू विल बी नोइंग फ्रॉम दैट टेबल कि कहाँ पे परसेंट बी, कहाँ पे परसेंट डी, और कहाँ पे कुछ और यूज करना है. एंड सेकेंडली, अगर इफ इट इज इन एम पी एम फॉर्मेट, देन यू हैव टू यूज लाइक दिस. समटाइम्स यू कैन यूज पी, समटाइम्स एम पी एम फॉर्मेट.
एंड देन उसका जो भी फॉर्मेटिंग है। तो आई वांट द डेट टाइम शुड बी डिस्प्लेड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, कि पहले वो उसका इन दिस वे इट विल टेक इट एंड इट विल कन्वर्ट टू द सम डेट टाइम। एंड आफ्टर दैट अगर आपको इसमें बीच में कुछ कॉमास स्लैश वगैरह कुछ ऐड करने हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन ऐड ओवर देयर। So in this way, the Python will convert its given date time into the date string function. तो हमने क्या क्या देखा है, तो अगेन विल क्विकली रिवर्स द टर्म्स। तो ये जो डेट टाइम है, यू कैन रेफर टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो, एंड ऑल्सो आई विल शेयर द टेबल ऑफ दिस डेट टाइम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी मॉड्यूल को या फिर किसी भी पैकेज को यू कैन लोड इन द पाइथन by simply downloading and installing that package using pip install command. That's the one thing. इससे आप कोई भी पैकेज जो कि हमने बनाया नहीं है खुद से, और वी आर यूजिंग दैट from the internet or some other sources, so by using pip install command you can install it. Secondly, if you are having any package which is previously loaded in the python or which is previously installed, आप उसको import command से यूज कर सकते हो, या फिर from that package import some things like that you can do. Secondly, अगर आपने खुद का पैकेज बनाया हुआ है तो इन दैट फ्रॉम दैट पैकेज आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आप इसमें यूज कर सकते हो। सो दिस हाउ यू विल बी लोडिंग सम पैकेजेस, defining some packages. You can create your own package, something like this, जिस तरह से main.py फाइल है उसके अंदर you can use this my model dot 2.py और इवन दिस सब पैकेज हो सकता है उसके अंदर के, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सो डेफिनेटली अगर आप कोई और पैकेज यूज़ कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से उसके अंदर फंक्शंस डिफाइंड है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन आपको उसको आर्गुमेंट पास करने होंगे। सो इफ यू पास आर्गुमेंट इन दैट फैशन ओनली, ओनली इन दैट केस इट विल वर्क। एंड सेकेंडली, कौन सा पैकेज है उसके अंदर क्या क्लासेस है या फिर उसके अंदर कौन से मॉड्यूल्स है या फिर कौन से फंक्शंस है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको वो हमेशा सारी चीज़ें आनी ही चाहिए या फिर यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली बाय सिंपली नोइंग इट्स डॉक्यूमेंटेशन। तो pypy.org पे भी उसका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे जाओगे ना इन दिस वे, तो इसका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका जो यूजेस है उसको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी होती है। तो अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे तो विल फाइंड कि यहाँ पे भी उसके बहुत सारे चीज़ें दी होती हैं। एंड इफ यू सी द डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, सो दिस इज प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ओनली, बट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी डॉक्यूमेंटेशन ओवर हियर। लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है इफ यू सर्च फॉर एनी पैकेज, एंड या हियर इट इज ओपन सीवी डॉक्यूमेंटेशन। So you will find the entire OpenCV मॉड्यूल एंड उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि कुछ कोर फंक्शनलिटी है इमेज प्रोसेसिंग के, ये मॉड्यूल्स है जिसके अंदर ओपन सीवी इज हैविंग दिस कोर, देन दिस आर दिस सब मॉड्यूल्स। तो ये मॉड्यूल्स उसके अंदर है, ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स उसके अंदर है। तो कोर फंक्शनलिटी के अंदर अगर हम जाएंगे तो इसके अंदर भी सारे आपको फंक्शंस मिलेंगे, कि फॉर एग्जांपल दीज आर सम फंक्शंस सी वी टू के अंदर की, ये सारे फंक्शंस है सी वी टू दिस फंक्शन, सी वी टू डॉट दिस फंक्शन। तो इसके सारे का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होता है। तो यू विल फाइंड दीज फंक्शंस इनसाइड इट, और उसका किस तरह से उसके क्या आर्गुमेंट्स हो गए, किस तरह से यूज़ करना है, उसके सारे फंक्शंस यहाँ पे होते हैं। सो इट्स कॉपी लेंदी डॉक्यूमेंटेशन होता है, इट्स वेरी लेंदी, बट वी डोंट नीड ऑल दीज स्टेप्स टू अंडरस्टैंड। जो भी हमें करना है उसको हम यहाँ से जाके उसका सिंटैक्स या फिर उसके फंक्शन को क्या आर्गुमेंट लगेंगे, किस फैशन में हम उसको आर्गुमेंट दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड की होती है। ओनली थिंग इज दैट यू विल हैव टू विजिट दैट थिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस सिंपल सिंपल स्टेप। तो ये यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इट मे सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम हियर, बट इट्स रियली इजी। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ओपन सीवी, हम आगे चल के देखेंगे, तब जाके फिर से मैं आपको इंस्टॉलेशन करने को बोलूँगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज़ डन। Okay, so that's all for the today's session for the modules and packages. So we'll wait in the chat section now for some doubts, and after that we'll conclude the session.